Hello students, welcome to second lecture of Controlled Drug Delivery System, which is unit first of subject Novel Drug Delivery System BP704T. Myself Shweta Jaiswal, I am your pharmacy tutor. In my last lecture, we have discussed about the concept or basics of Controlled Drug Delivery System and discuss what is meaning of controlled drug delivery system. Then discussed what is rationale for the controlled drug delivery system, what is the need for designing such type of this system, and then advantages and disadvantages of controlled drug delivery system. Now in today's session, I am going to discuss about the what is the release pattern followed by the controlled drug delivery system, that is kinetics of controlled drug delivery system. Then what are the good candidates for selection of the controlled drug delivery system, and what are the various factors which affects the controlled drug delivery system. Now starts today topic. सबसे पहले हमें ये जानना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है इन डिज़ाइनिंग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो हम जानते हैं कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है ड्रग डिलीवरी के रेट को कंट्रोल करना. ओके, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमें ड्रग के रिलीज़ को कंट्रोल मैनर में रखना होता है ताकि वो सेम रेट से ड्रग को रिलीज़ कर सके. बट ये बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स होता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है इन डिज़ाइनिंग द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. So on the basis of release pattern of drug from this system is classified or characterized in three parts. First part is passive pre-program, second is active pre-program, third is active self-programmed. Passive pre-program क्या होता है? In this system drug release at predetermined rate. यहाँ पे ड्रग का रिलीज प्रीडिटरमाइंड रेट से होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर. That means that is the system which is built in drug release characteristics and which doesn't change according to the need of body and according to the environment. चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बॉडी की नीड्स चेंज हो रही है तो इसके रिलीज़ पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आएगा. अगर हमारी बॉडी के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी चेंज हो रही है तो भी इसके रिलीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा. डैट मीन्स पैसिव प्री प्रोग्राम क्या है? इसका रिलीज़ पहले से ही डिटरमाइंड होता है कि ये कौन से रेट को फॉलो करेगा. ओके, अगर ये ज़ीरो ऑर्डर को रेट को फॉलो कर रहा है तो उसी रेट से ड्रग को रिलीज़ करेगा. ये कभी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा. सेकेंड है एक्टिव प्री प्रोग्राम्ड रिलीज. ओके, एक्टिव प्री प्रोग्राम रिलीज में रिलीज रेट रेगुलेटेड बाय द सोर्स एक्सटर्नल टू द बॉडी. एक्टिव प्री प्रोग्राम में ड्रग रिलीज पैटर्न क्या होता है? एक्टिव प्री प्रोग्राम में रिलीज रेट रेगुलेटेड बाय सोर्स एक्सटर्नल टू बॉडी. That is, this delivery system deliver the drug at required dose. मतलब यहाँ पे ड्रग डिलीवरी जो होगा ड्रग का वो रिक्वायर्ड डोज में डिलीवर्ड होता है. मीटर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज होता है एट डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इसका एग्जाम्पल है मीटर्ड इंसुलिन पंप. Why it is active? Because it deliver major amount of drug. Metered insulin pumps इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. मीटर्ड इंसुलिन पंप डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्रग को एट रेगुलर इंटरवल पे धीरे धीरे रिलीज करता है. लास्ट एक्टिव सेल्फ प्रोग्राम्ड ड्रग रिलीज.
This system is also known as a intelligent drug delivery system. क्यों हमने इसे intelligent drug delivery system कहा? क्योंकि it have an inherent property or inherent capacity. Inherent capacity का मतलब क्या हो गया? इसमें सेंस करने की कैपेसिटी होती है. ये क्या सेंस करती है? अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं ड्रग लेवल में या फिर इन्वायरमेंट में, तो ये उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करके ड्रग को क्या करती है? रिलीज करती है. दैट pattern releases rate according to the information gathered by the sensor. Sensor means it have an inherent capacity which senses the changes which is happening in the biological environment or happening in the body. Best example for active cell program is insulin release triggered by changes in blood glucose level. क्या मतलब हुआ? हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंजेस आता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट होता है. ओके, जो इंसुलिन का हमने पैच बनाया होगा, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो भी हमने फॉर्मुलेशन लिया होगा, जो भी सिस्टम लिया होगा, जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिला, जैसे ही उसे सेंस मिला कि ब्लड में क्या हो गया है, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, वैसे ही इंसुलिन धीरे धीरे वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा. दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ ड्रग रिलीज अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल ड्रग delivery system. Now next, kinetics of drug release. According to the controlled drug delivery system, the system exhibits three types of release. First, zero order. जीरो ऑर्डर रिलीज में ड्रग रिलीज एट कांस्टेंट रेट. ओके, इसके लिए इक्वेशन दिया गया है QT इक्वल्स टू Q0 प्लस K0 where QT indicates what amount of drug release in time t, Q0 indicates initial amount of drug in solution and K0 indicates zero order release constant. According to zero order release, graph will plotted against the drug release versus the time, and I will show you graph for zero order drug release. See, on left hand side dc by dt versus time. Okay, zero order release always gives a straight line. Okay, straight line, it is parallel to the x-axis. Okay, it follows the zero order release. रिलीज का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है? जीरो ऑर्डर रिलीज का एप्लीकेशन होता है ड्रग डिसोल्यूशन को डिस्क्राइब करने में, जहाँ पे हम मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म का अगर मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म का डिसोल्यूशन निकाल रहे हैं या फिर ट्रांसडर्मल सिस्टम का या फिर कोई मैट्रिक्स टैबलेट है, कोई लो सॉलिडिटी ड्रग्स को हमने लेके उसका मैट्रिक्स टैबलेट बना दिया है, कोई कोटेड टैबलेट है, तो वैसे केस में क्या होते हैं, ये सारे किसको फॉलो करते हैं? ज़ीरो ऑर्डर ड्रग रिलीज़ को फॉलो करते हैं, जहाँ पे ये सेम अमाउंट ऑफ ड्रग को रिलीज़ करते हैं टिल द डिवाइस एक्सहॉस्टेड. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर ड्रग रिलीज. फर्स्ट ऑर्डर ड्रग रिलीज, इन दिस release rate is directly proportional to the residual active engaged in the device. Residual active का मतलब क्या है? बचा हुआ concentration of drug. इस इक्वेशन को बता रहा है dmt by dt equals to k into m0 minus mt, where dm by dt signifies the rate of drug release and m0 minus mt is residual concentration of drug, which means कितना ड्रग बचा हुआ है अभी उस डिवाइस में. m0 क्या बता रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन डिवाइस, एंड mt क्या इंडिकेट कर रहा है? अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज इन
टाइम t। अब इनिशियल में अगर हमने अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज टाइम t को माइनस कर दिया तो हमारे पास कौन सा ड्रग बच गया, हमारे पास बचा रेसिडुअल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा k, और k यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीज को। अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट व्हाट mt बाई dt इक्वल्स टू k m0 e एक्सपोनेंशियल माइनस kt। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिलीज कैसा ग्राफ शो करता है, in right hand side it shows first order drug release, that means it shows exponentially decline in concentration। रिलीज रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग धीरे धीरे क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे ग्राफ जो हमें दिखेगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन ग्राफ हमें यहाँ देखने को मिलता है। See that Higuchi model, okay? According to this model, release rate is linear with the reciprocal of the square root of the time. In this release rate remain finite even after exhaustion. ओके मतलब क्या समझ में आया, काइनेटिक्स में क्या होता है, जो ड्रग रिलीज होता है वो फाइनाइट होता है इवन एग्जॉशन के बाद भी, मतलब सेम एज इट इज ये चलता जाएगा चलते जाएगा। इसका ग्राफ मैं यहाँ पे स्लाइड में ऐड करना भूल गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका ग्राफ कैसा होगा। जैसा अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिलीज में देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिलीज में कैसा ग्राफ दिख रहा था हमें, एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन, बट इन हिगुची मॉडल इट्स सीम्स लाइक ऊपर से डिक्लाइन पोजीशन में आते हुए नीचे से जब ये एक्स एक्सिस के सामने आएगा तो ये पैरेलल कंडीशन दिखाने लगेगा। ओके, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट फैक्टर इज ड्रग प्रॉपर्टीज। ड्रग प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट्स कर रही है वो हम जानते हैं। सबसे पहला जो भी ड्रग प्रॉपर्टीज़ है, ड्रग प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे, कोई भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक ड्रग की सॉलिबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, चार्ज, प्रोटीन बाइंडिंग, ये सारी क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग है। ऑल हैविंग द सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द डिज़ाइनिंग सिस्टम। ड्रग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डील करेंगे। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, आइदर ओरली डिज़ाइन कर रहे हैं, आइदर पैरेंटल पर्पस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे पैरेंटल में मेन रिक्वायरमेंट्स होती है ड्रग डिलीवरी सिस्टम की स्टेरिलिटी, आइसोऑस्मोटिक क्लैरिटी एटसेट्रा। एंड ओरल डोजेस फॉर्म में या ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कांस्टेंट है, जीआई मोटिलिटी कैसी है, ब्लड सप्लाई कैसा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं जब हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं, आइदर हम पैरेंटल के लिए बना रहे हैं, आइदर हम ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए बना रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कि हमें कौन से रूट से के लिए कौन सा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना है। थर्ड है टारगेट साइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता क्या है, हम यहाँ पे ड्रग को टारगेट करते हैं किसी स्पेसिफिक साइट के लिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ड्रग अदर टिश्यू पे नॉन टारगेट हो, ये हम अचीव करना चाहते हैं, और टिश्यू टॉक्सिसिटी ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो कोई अदर टिश्यूज़ पे। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्टेन पॉलीमर का यूज़ करते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ ए ड्रग टू द पर्टिकुलर टिश्यू और पर्टिकुलर साइट। नेक्स्ट आता है एक्यूट और क्रोनिक थेरेपी। एक्यूट एंड क्रोनिक थेरेपी का मतलब क्या है
कि हमें देखना होता है कि हमें जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम चाहिए वो किस पर्पस के लिए चाहिए। क्या हमें एक्यूट कंडीशन के लिए चाहिए, क्या हमें क्रोनिक कंडीशन के लिए चाहिए। अगर एक्यूट कंडीशन के लिए चाहिए, एग्जाम्पल अगर हमें कोई माइक्रोबियल अटैक हुआ है तो हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या करती है, लंबे टाइम तक हम यहाँ पे ड्रग रिलीज करा सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा एग्जाम्पल है इसी का कॉन्ट्रासेप्टिव, जहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स यहाँ पे धीरे धीरे 1 साल तक क्या करते हैं, ड्रग को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसलिए अगर हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हम किस थेरेपी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्यूट के लिए और क्रोनिक थेरेपी के लिए। डिजीज़ कंडीशन में अगर कोई पेशेंट डिजीज़ कंडीशन में है, एग्जाम्पल रीनल फेल्योर है या फिर हेपेटिक फेल्योर है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम सेम डोज जो हम हेल्दी पेशेंट को दे रहे हैं वही हम इस डिजीज़ पेशेंट को देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ड्रग का एलिमिनेशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ठीक से क्या होगा, ड्रग का एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, प्लाज्मा लेवल में ड्रग का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ही हाई होगा फॉर द सेम डोज के लिए। तो एट दैट केस में भी हमें क्या करते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को के डिज़ाइनिंग में ये फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है पेशेंट कंडीशन। पेशेंट कंडीशन कैसा है, पेशेंट का बॉडी पोजीशन कैसा है, आइदर वो खड़ा है या फिर लाइन पोजीशन में है, इनटेक ऑफ मील कैसा है, कैसा खाना खा रहा है, ओबेस कंडीशन है या नहीं, ओल्ड पेशेंट है, यंग पेशेंट है, पेशेंट का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है इन डिज़ाइनिंग द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग कंटेंट। तो इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रग का जो कि उसे अनसुटेबल बनाती है फॉर द कंट्रोल ड्रग रिलीज डोजेस फॉर्म के लिए। तो अगर शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है जो कि लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें मोर नंबर ऑफ डोजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इन सिंगल ड्रग डिलीवरी डिवाइस में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस देने पड़ेंगे वहाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस देने के लिए हमें सेम ड्रग डिलीवरी डिवाइस में मोर नंबर ऑफ डोजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जो कि ये PDDS के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग एलिमिनेशन और लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, जिसका मतलब है the drug which have long biological half life, which means the drugs are already sustained in their release pattern. ओके, बायोलॉजिकल हाफ है, लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि ड्रग यहाँ ऑलरेडी पहले से ही सस्टेन रिलीज पैटर्न में है। सो इस टाइप के ड्रग का कोई भी एडवांटेजेस नहीं है फॉर्मुलेटिंग करने में इस टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आता है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज। इट इज़ द रेशियो ऑफ द LD50 to ED50. What is LD50? LD50 denotes the lethal dose in 50% of population. And what is ED50? ED50 effective dose in 50% of population. थेरेपेटिक इंडेक्स है, एग्जाम्पल अगर 10 से कम है तो वो क्या होगा, नॉट कंसीडर फॉर द सिलेक्शन, नॉट कंसीडर फॉर द गुड कैंडिडेट फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे अगर कोई ड्रग का ब्रॉडर थेरेपेटिक इंडेक्स रेंज है, देन क्या होगा, वो सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होता है। अगर वहीं कोई ड्रग का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है तो वहाँ पे हायर रिस्क होते हैं इन द फ्लक्चुएशन इन द प्लाज्मा ड्रग लेवल। इसलिए कभी भी हम नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग को
को चूज़ नहीं करते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं पुअर एब्जॉर्प्शन। अगर हमें कोई ड्रग को लेके उसका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फॉर्मुलेट करना है तो सबसे पहले हमें ये हाइपोथेसिस करना होता है कि ड्रग जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है होल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। If drug is not absorbed from the lower intestine, then it is not suitable candidate for the formulating control drug delivery system. Example for that, riboflavin. आते नेक्स्ट है लो और स्लो सॉलिबिलिटी। अगर लो सॉलिबिलिटी है या फिर स्लो सॉलिबिलिटी का मतलब क्या बता रहा है कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम है। अगर सॉलिबिलिटी कम है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है यानी कि परमिशन नहीं हो रहा है, तो वैसे ड्रग को हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्रिसोफुल्विन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसाइज डोज टाइट्रेशन। प्रिसाइज डोज टाइट्रेशन का मतलब है एज पर द नीड्स ऑफ द पेशेंट वी हैव टू प्रिसाइज द डोज। डोज टाइट्रेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स, पेशेंट की कैसी नीड्स है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है वहाँ पे एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत है तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पे सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे और ऐसे करेंगे कि उसकी ब्लड की कैपेसिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उस एंटीकोगुलेंट ड्रग का स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग लेके हम क्या करेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। अगर एंटीकोगुलेंट का लेवल हाई हो जाएगा तो क्या होगा, हेमरेज हो जाएगी, तो जो कि लीथल कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं ड्रग का फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्मुलेशन के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आने वाले दिनों में आपको मेरी जितनी भी क्लासेस 7 सेमेस्टर की मैं अपलोड करने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।